جگہ بنا رہے تھے. تو آج میڈم آج ملاقات کے لیے آپ لوگ آئے انتظار کر رہے ہیں. جی اگر ملاقات نہیں ہوتی تو دھرنا جاری رہے گا. بالکل بیٹھیں گے. یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پیچھے کون ہے؟ یہ کون ہے؟ غیر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، غیر آئینی باتیں کر کے. عمران خان کو آئسولیشن میں ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، آئسولیشن کر کے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ غیر قانونی چیز ہے. یہ کون ہوتے ہیں عمران خان کو آئسولیٹ کرنے والے؟ یہ ڈرتے ہیں عمران خان سے، یہ خوفزدہ ہے عمران خان سے، اس سے ان کو بند کر دیا. ان کی آواز سے یہ ڈرتے ہیں. اس لیے عمران خان کو ہم اس کی احتجاج کریں گے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جائے گا. عمران خان کی ملاقاتیں بحال کی جائیں تاکہ ان کی قید تنہائی ختم کی جائے اور یہ ٹارچر ختم کیا جائے. حلیمہ خان صاحبہ، یہ -1 فارمولہ اس ٹائم چلایا جا رہا ہے کہ -1 ہوگا تو پی ٹی آئی آگے سروائیو کرے گی. -1 فارمولہ اس ٹائم جو ہے اس کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے. بیٹا آپ میری بات سنو، کیا ہو گیا؟ پہلے دن سے یہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نئی بات کرو. وہ بیچارے -1 سے تو دیکھو مینڈیٹ چوری کیوں کرنا پڑا، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے خلاف ہے. آپ کی آواز سے ڈرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنا حق نہ مانگ لیں. آپ اگر 25 کروڑ لوگ اپنے سے حق مانگنا شروع کر دیے، جو تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں جو مزے لے رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے پھر؟ آپ سارے کہو گے کہ ہمارا بھی حق ہے اس ملک پہ. وہ آپ سے ڈرتا ہے. عمران خان آپ کی آواز ہے، اس لیے آپ کی آواز دبا رہے ہیں. آپا آپ لوگوں کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، سپریم کورٹ آپ چلے گئے ہو، موجودہ جو حکومت ہے جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت کی. میڈم کسی کی نہیں چلتی، لیکن شام 8 بجے ٹی وی پہ فیصل واڈا بیٹھ کے جو باتیں کرتا ہے اس کی چلتی ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اڈیالہ میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہوگی، بہنوں کی نہیں ہوگی، جو ورکر آئیں گے ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ میں کیا کروں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کیا میرے سے کیا سوال پوچھیں؟ بیٹا میرے سے سوال کیا پوچھ رہے ہو؟ میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتا دوں ہم یہ ملاقات کرنے ہیں. عمران خان قید تنہائی میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے رکھا گیا، یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم بیٹھیں گے. میڈم ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ میں الزام یہ ہے کہ فیملی ملاقاتوں کو آپ سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرتی ہیں. جی مطلب آپ سسٹر جو فیملی کی جو ملاقات کہ سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور ہائی کورٹ کون سا قانون کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری آوازیں ویسے عمران خان کی بند ہے اگر ان کا پیغام آتے ہیں؟ کون سا قانون آپ مجھے قانون کے مطابق بتائیں؟ کون سا قانون آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں بات کرنے میں پابندی ہے؟ پہلے بتا دیں مجھے، قانون بتائیں پھر بات کریں. لاسٹ ملاقات میں یہ عظمیٰ سے بات ہوئی تھی کہ جو سیاسی باتیں اندر آپ سے باہر نہیں کی جائے گی، لیکن باہر آ کے انہوں نے بات کی سیاسی میں کسی بنا پہ ان کی ملاقات انہوں نے ملاقات کی گارنٹی دی تھی. کون گارنٹی؟ کس نے کہا تھا آپ کو یہ تو آپ کو پتا ہوگا. نہیں ایک سیکنڈ، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں کرنے. میری بات سنیں، یہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. دوسرا، میری بہن نے کون سی پولیٹیکل بات کی تھی؟ مجھے ذرا دہرا دیں، مجھے یاد نہیں ہے. عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے کیونکہ عاصم منیر ہمارا ہیرو ہے، عاصم منیر پاکستان کا ہیرو ہے، انہوں نے جنگ جیتی ہے. عاصم منیر سرکاری ملازم ہے. عاصم منیر سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں سیاست میں نہیں ہوں. تو سرکاری ملازم کے بارے میں بات بھی تو میڈیا پہ نہیں ہو سکتی. تو کسی کا نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے کہا تھا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ غلام کھلیے کر رہے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو غلام ہیں. میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں غلام رہنے کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنا آئین پڑھیں. آپ کے آئین کے مطابق آپ کو اپنے اظہار خیال کرنے کی اجازت ہے. آپ کے آئین کے مطابق چل سکتے ہو کہ بندوق لے کے بیٹھ جائے گا، کہے گا کہ آپ بول نہیں سکتے ہو اور آپ سارے ساتھ شروع ہو جائیں گے. غلامی نہیں کرنی ہونے آپ نے. یہ ہمارا ملک ہے. عمران خان یہ ان لوگوں کا لیڈر ہے اور اگر انہوں نے اس کی بات اگر وہ پیغام بھیجے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ پیغام عوام تک پہنچائیں. انہوں نے عوام کے لیے بھیجا تھا. تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ خان صاحب نے ایک سیکنڈ، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایسی کیا گھبرانے کی بات ہے؟ ڈرنا نہیں چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں کہا جا رہا تھا آپ آئیں گے لاٹھی چارج، ہم نے کہا لاٹھی چارج کرو. کیوں؟ ہم کیا اپنی سڑک پہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم کیا اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے؟ کیوں؟
हमारा उतना ही हक है जितना हर पाकिस्तानी का इस मुल्क में हक है। मैडम को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा खान साहब जो है वो आइसोलेशन में है, उनका बुक्स नहीं जाने दी जा रही। मारियो मुफल को आइसोलेशन में इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेशन से, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि आप इमरान खान को टॉर्चर नहीं करेंगे। ये गैर आईनी और गैर कानूनी। जब आप बात करें ना, हमेशा बात करें, मेरे से अगर आइंदा सवाल पूछना है आइन और कानून के दायरे में पूछना, मुझे ना बताना कि टीवी तुम्हारे शोज पे क्या चल रहा है। था कि कोई नहीं पहुंचेगा अडियाला जेल और जो पहुंचेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। सर आप लोग पहुंचे हो, कोई इफेक्ट पड़ा है रास्ते पे आप लोगों को? जी हम बड़े नॉर्मली आए, जिस तरह रूटीन से आते हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनों के साथ मिलके इधर तक आए हैं और जो रास्ता पहले दिन से बनता वही रास्ता भी बंद है और ये चाहते हैं कि ये इधर कोई मिस एडवेंचर करें। इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमने पुरअमन तरीके से इधर बैठना है। इमरान खान साहब की बहनें, उनकी फैमिली की सॉलिडेरिटी के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत जो है, हमें मज़ीद खदशात जो है हम उसका इजहार करते हैं, क्योंकि जेल के अंदर कुछ भी कर सकते ज़ालिम जाबिर है। अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये कैदी तन्हाई में बंद कर सकते हैं सियासी मुकदमात पे, तो अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी तौर पे भी। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ, कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता और हम आइंदा भी आएंगे। और आप इन लोगों को इतना सीरियस ना लें जो थ्रेट्स दे रहे हैं, हम जानते हैं, इनको बड़े करीब से जानते हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। खटक साहब, कल मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया था कि पार्टी कारकुनान में से कोई भी अडियाला नहीं जाएगा, उसके बावजूद आप बजाते खुद यहाँ मौजूद है, कारकुनान की बड़ी तादाद, क्या कहेंगे? हमने कभी भी ऑफिशियल कॉल नहीं दी। आपने देखा होगा कि कभी भी पार्टी की जानिब से वर्कर्स को, कौम को कॉल नहीं दी। हम अपने MPs को बुलाते हैं, हम अपने MNS को बुलाते हैं, हम अपने टिकट होल्डर्स को बुलाते हैं। और जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं, वो तो आपको पता है, वो तो जिधर इमरान खान का नाम हो वो आग उबूर करके भी उधर चले जाते हैं। तो ये तो इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि इतनी धमकी के बावजूद, और इनकी पहले दिन से यही ख्वाहिश रही कि इन लोगों को डराना, धमकाना, और ताकि लोग डर जाएं। देखिए इमरान खान साहब 25 करोड़ आवाम का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की इंश्योरेंस, जिसको पंजाबी, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून, बलूचिस्तान बलोच, वहाँ के पश्तून, और सिंधी, उर्दू स्पीकर, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह कश्मीर, जितने भी पाकिस्तानी हैं, इन सब का इत्तेफाक एक लीडर के ऊपर है, उसका नाम इमरान खान है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में, 8 फरवरी के इंतखाबात ने ये कौम ने साबित करके दिया। बावजूद इसके कि हमारे पास कोई एक निशान नहीं था, हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, और उसके बावजूद आपने इमरान खान साहब को बंद कर दिया है। लेकिन जब आप कौमी लीडर्स को, कौमी जमातों को आप तोड़ते हैं, उनको आप फिक्स करते हैं, इससे मुल्क का नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ, अभी इधर आप इंटरव्यू करें, यहाँ पे आपको पश्तून भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको पंजाबी भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको सिंधी भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको बलोची भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको वकील भी नजर आएगा, यहाँ पे आपको आलिम भी नजर आएगा, आपको यहाँ पे डॉक्टर भी नजर आएगा। हर मकतबा फिक्र से आपको लोग नजर आएंगे, वो ख्वाह जिस भी शोबे से ताल्लुक हो। इमरान खान साहब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बाद दूसरे लीडर हमें मिले हैं जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी कौम का इत्तेफाक है, जहाँ पे ना लिसानियत चलती है, ना उसने फिरकावारियत को ख़त्म किया। हमारे पार्टी में अहले तशरीह है, हमारे पार्टी में देवबंदी है, हमारे पार्टी में बरेलीज हैं, हमारे पार्टी में हर मकतबा फिक्र से। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बना सकते हैं, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया माजी में अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर। इसी तरह जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो आवाज़ बनी, जिधर जिधर कश्मीरियों को कभी जब ज़रूरत बनी इमरान खान साहब उनकी आवाज़ बने, जब फ़लस्तीन के लोगों को ज़रूरत पड़ी इमरान खान साहब उनकी आवाज़ बने, और जिधर भी मुसलमानों के ऊपर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है इमरान खान साहब अपने भाइयों। सर आपने इमरान खान को कौमी और उम्मत मुस्लिमा का लीडर करार दिया, जो आपने बातें की सर, लेकिन रियासत ये कहती है कि इमरान खान रियासत के लिए खतरा बन चुके हैं, उनके जो बयानात हैं वो रियासत के लिए खतरा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने क्रिकेट से शुरू किया। अगर आप उनकी क्रिकेट के मैदान आप याद कर लें, पूरी कौम को पता है कि एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तकरीबन 25-30 साल गुजर गए, कोई दूसरा सबूत हमने नहीं जना इस मुल्क ने कि वो हमें वर्ल्ड कप जैसा एक इवेंट जितवा के दे सकता। नंबर 2, अगर आप उसकी सोशल जिंदगी देख लें, कोई भी रिटायर्ड जर्नल, कोई भी रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इमरान खान के अलावा कि जिसने प्रोफेशनल जिंदगी गुजारी हो, अपना जेब काट के कौम को शौकत खानम जैसा उसने तोहफा दिया।
मुझे दूसरा नाम बता दे जो जिसने नौकरी की हो। भाई तो जजीरे बनाते हैं वो लोग, क्या नहीं पता कि पाकिस्तानी कौम को वाहिद बंदा है, वाहिद लीडर है, वाहिद इंसान है, वाहिद पाकिस्तानी है कि जिससे पैसा कमाया शौकत खानम आपको बना की थी। नंबर तक जो इस मुल्क के ऊपर उसने जो सबसे बड़ा एहसान किया इमरान खान साहब ने, वो तहरीक इंसाफ की सूरत में है। इस मुल्क में नूरा कुश्ती चलती रही, एक को कहता था कि चोर है, दूसरा दूसरे को कहता था कि चोर है, और दोनों मिलकर इस मुल्क को लूट रहे थे। तहरीक इंसाफ जैसा गुलदस्ता दिया हमें, जिसमें हम जैसे आम मिडिल क्लास नौजवान आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। देखिए मैं 36-37 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो ईवान में भी नशस्तों के लिहाज से सबसे बड़ी है, मुझे इमरान खान साहब ने उसका पार्लिमानी लीडर नामजद किया। सुहेल आफरीदी जो कि फर्स्ट टाइमर था, सुहेल आफरीदी को जो ISF से जो आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कारकुन था, इमरान खान साहब ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। और ऐसे सेहत कार्ड हो गया, बिलियन ट्री सुनामी हो गया, मैं आपको बहुत ऐसी चीजें गिनवा सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर की है। इमरान खान साहब इस मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमरान खान साहब जो है उसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है, और तमाम लोगों का इत्तेफाक ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा जिंदाबाद। अच्छा खटक साहब आखिरी सवाल ले लें कि एस्टेब्लिशमेंट और KP हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी हमारे, उनका काम क्या होता है? उनका काम है ये उनकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? कौम करेगी। फिर जब लोग तनकीद करते हैं फिर बुरा मानते हैं कि जी हमारा नाम क्यों लेते हैं, हम गैर सियासी हैं। और रही बात खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको एक बात बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त वाहिद इलेक्टेड हुकूमत है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाया रिएक्शन आएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरा काम था आपको बताना, अलर्ट करना। अच्छा, बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आर्मीज की है, आपको पता ही है, तो सूबाई हुकूमत को नहीं चाहिए कि उनके साथ जो है इस मामले पे जो है उनके साथ हम बहुत जल्द इंशाल्लाह तमाम डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे कि जो हमारी पुलिस ने इस जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने ऐसे लोगों को जहन्नम मिसाल किया जो हमारे सूबे की अमन को खराब करना चाहते थे। CTD पुलिस या हमारी जो अपनी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हमने हर लेवल पे कोऑपरेट किया है। देखिए हमारा इख्तिलाफ पॉलिसी के ऊपर है। पॉलिसी ये कि कभी आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो, और आपने खुद सेटलमेंट की। 2007 में सूफी मोहम्मद के साथ हमने सेटलमेंट नहीं की थी, जिन्होंने की थी आप जाके देख लें। उसके बाद जब जनरल बाजवा ने इन कैमरा ब्रीफिंग रखी पार्लियामान के अंदर, तो उसमें भी उसने यही सजेस्ट किया कि जी हमें इनको आबाद करना चाहिए, पाकिस्तानी है, बुनियादी तौर पे भटक गए हैं, इनसे बातचीत करके हम इनको सेटल कर देते हैं। अच्छा, एक फौज की वो पॉलिसी थी जो सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसके बाद जब उनको लाया गया, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो गए, और अब कहते हैं कि नहीं जी हमने इनको एलिमिनेट करना है। कोई जाके वहाँ पे चाय पीता है अफगानिस्तान में, कोई उसके ऊपर हमला करता है। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी बने, एक पॉलिसी हो जिसका लाइन क्लियर हो। और पॉलिसी कैसे बने? पॉलिसी हमें बिठा के सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर को बिठा के, देखिए एक अकल कुल नहीं होता। हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, हम अपने चीजें टेबल के ऊपर आपको रख के देंगे, क्योंकि हम उस सूबे के बाशिंदे हैं, हमें पता है कि इस दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, पॉलिटिकल जमातें मकामी उन अजला की जहाँ पे मिलिटेंसी है, उसके साथ एल्डर ऑफ द एरिया जो वहाँ पे हमारे कबाइली या इमायदीन है या हमारे मशरान है, वहाँ के नौजवान और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत, और प्लस हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी फौज की तरफ से या जो भी उस तरफ से हो, 5-6 बंदे बैठ के हर जिले की अलग अलग डायनेमिक्स है, उसको स्टडी करके उसकी बुनियाद के ऊपर पॉलिसी बना दे कि अगर मशरान हमें कहे कि जी हमें आप 20 दिन का मौका दे, हम जाके उन लोगों से बात करते हैं कि जी आप लोग इधर से बाहर जाएं, आप इधर ना आए, आप उधर से फायरिंग करते हैं, हम बेगुनाह शहीद होते हैं। जब फौज आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो भी उसमें हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। देखिए ड्रोन हमलों के हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? अगर ड्रोन हमले सही टारगेट पे लगे, सही जगह पे लगे, तो ना उसका शोर होता है। हम चाहते भी हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, लेकिन जब ड्रोन के अंदर आम बेगुनाह बच्चे, खवातीन, शहरी शहीद होते हैं, उसका जवाब फिर कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होता। सर आखिर में जुमेरात को जानिब खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया गया था पार्टी क़यादत की जानिब से, उसका क्या हुआ या सिर्फ ये कहानी थी?
ये तो मैं अब क्या भी इसका मैं जवाब दूँ, कभी खुद सवाल भी कर रहे हो, खुद जवाब भी दे दिया है, तो मैं नहीं देता इसका जवाब। अच्छा, जुमेरात को सुहेल अफरीदी साहब एक बार फिर कोशिश करेंगे खान साहब से मुलाकात नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जो लिस्ट आता है उसमें अगर नाम हो तो जरूर आएंगे। सर कल जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपकी बातचीत हुई है, किसकी बातचीत कोई मेडिकल कह रहा था कि वो जाएगा बोर्ड, वो खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात देखिए, करेंगे, मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, तो सवाल है उसका मुझे बस exact नहीं